اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک میں پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس وقت عثمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مچھلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھی۔ جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مچھلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مچھلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشل درست کرنے لگی، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مچھلیں بجھ جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ 13ویں آیت ذرا میرے پیچھے پیچھے پڑھیے گا۔ پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ آمین۔ اچھا، کویسچن ایک پوچھنے جا رہا ہوں، سارے ہفتے کا نہیں۔ اس تمثیل کو کس کس نے پڑھا اور سنا ہوا ہے؟ صحیح، اوکے ہو گیا۔ اور اس تمثیل کو آپ نے سنا، پڑھا، اور کس کس نے اس تمثیل کی جو یہ پڑھی گئی ہے بارے میں کلام بھی سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے، اوکے۔ اچھا، یہ میں نے 2 سوال اس وجہ سے پوچھے ہیں کہ اگر آپ نے سنا ہوا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو سنا ہے آج آپ کو مختلف ہی اس سے ملے گا، الگ ہی ملے گا۔ اور شاید جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے جانا ہے، جو روح نے مجھے گائیڈ کیا مختلف کتابوں کے وسیلہ سے، پاک روح نے کسی خادموں کے وسیلہ سے یا کسی بھی وسیلے سے خدا نے خود دیا، تو آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میرا ایمان ہے کہ آپ نے نہیں سنی ہوگی جو باتیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگر آپ نے نئی کچھ سنا ہو نیا تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ پہلے یہ والی تمثیل ہم نے اس طرح نہیں سنی۔ یہ میں اس بات کو ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا بعد میں۔ سارے کلام مقدس کی اس آیت اور ان آیات کو، اس کہانی کو اور اس واقعے کو تمثیلوں میں ہم جانتے ہیں۔ 24واں باپ اگر دیکھیں تو 24ویں باپ کو لکھنے ذہن میں کہ یہ چھوٹا مکاشفہ ہے۔ 24واں باپ کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ تو فل ہے نا، لیکن جو 24واں باپ ہے، کہتے ہیں یسوع مسیح نے جو اپنے آنے والے وقت کے بارے میں بتایا، اس کو چھوٹا مکاشفہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو تمثیل ہے، تمثیلیں جو ہوتی ہیں یسوع مسیح کلیئرلی بات نہیں کرتے، کلیئرلی بات تمثیلوں میں نہیں کرتے۔ بعض اوقات شاگردوں نے جو ہے پوچھا جب تمثیلوں میں یسوع مسیح نے باتیں کی کہ اورا کی مطلب سی، ایرا کی مطلب سی، ایرا کی مطلب سی، اس بات کو ہم جانتے ہوں گے۔ اگر یسوع مسیح نے کہا کہ جو دل میں ہے وہی کیا ہے، منہ پہ آتا ہے، وہ اندر سے جو ہے گندگی ہوتی ہے، تو بعد میں شاگرد جا کے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب تو انہوں نے کیا۔ اگر یسوع نے بیج کا بتایا، کچھ پتھریلی زمین پر گرے، کچھ اچھی زمین پر گرے، تو شاگردوں نے جا کے پوچھا ہے کہ مطلب میرا بھی دسو۔ تو کچھ باتیں ایسی تمثیلوں میں ہوتی ہیں، یہ نبوت ہوتی ہے۔ تمثیلیں جو ہوتی ہیں ان کو نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا ہے نبوت؟ کہا کیا مطلب ہے نبوت کا؟ آنے والے وقت کی کیا ہے پیشن گوئی، خبر دینا۔ کچھ چیزیں کلیئرلی ہوتی ہیں اور کچھ نبوت کی ہوتی ہے۔ نبوت یعنی کہ تمثیلوں میں کہا جاتا ہے، اور اس تمثیل میں
10 लोगों का जिक्र है, 10 कुंवारियों का, 10 कुंवारियों का, कुंवारियां, 10 कुंवारियां। यीशु मसीह दूल्हा है? हाँ जी, यीशु मसीह दूल्हा, और वो अपनी दुल्हन यानी कि कलीसिया को क्या है, लेने आया। और ये कलीसियाओं का जिक्र है, ये 10 कुंवारियां, मुख्तलिफ 10 कलीसियां हैं। 10 कुंवारियां मुख्तलिफ क्या है, 10 कलीसियां हैं। और ये कोई गैर जो है वो नहीं है जिनका ईमान नहीं है, ये सारे ईमानदार हैं। मैं पहले बता रहा हूं, ये सारे क्या है, ईमानदार है। आपको पता था? ये सारे ईमानदार हैं और ये सारे के सारे यीशु के इंतजार में हैं। सारी कलीसियां, 10 जो भी कलीसियां यीशु पर ईमान रखती हैं, वो सारी यीशु पर ईमान रखते हुए यीशु के क्या है, इंतजार में है। तमसील की अब मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और इनके पास जो कुंवारियां हैं, ये जो कलीसिया है, कलीसिया के लोग हैं, इनके पास मछली हैं। क्या है? मछली हैं कि नहीं है? सारी ईमानदार हैं। मुख्तलिफ कलीसियाओं के मुख्तलिफ तरीकेगार हैं। ये आज मैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, उनमें से 5 किस्म के लोग जो है वो सच्ची तालीम हासिल कर रहे हैं और 5 किस्म के लोग मिक्स तालीम हासिल कर रहे हैं। मछली उनके हाथ में है, यीशु पर क्या है, ईमान है, लेकिन मछलियां जो हैं वो पूरी तरह जल नहीं रही। मछली जो है वो खुदा का कलाम है। मछली क्या है? आए जरा मैं कुछ आयात आपके साथ शेयर करने लगा हूं, मेरे साथ निकालिए मछलियों के बारे में, आग के बारे में, क्योंकि मछली क्योंकि रोशनी देती है। मछली क्या है? रोशनी देती है। पहली बात ज़बूर 119 105 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी। मैं जरा तमसीलों के अब मायने आपको बताने लगा हूं। ये तमसीली मायने जो है आपके साथ अब शेयर करने लगा हूं। रोशनी यानी कि मछली वो खुदा का क्या है, कलाम। अमर 2-3 हवाले, वैसे तो बहुत सारे हवाला जात हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करने लगा हूं। पहली मैंने आपके साथ शेयर कर दी 119 ज़बूर की 105 आयत है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी। इसी के साथ एक और हवाला पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब, मछलियों के बारे में, मैं रोशनी के बारे में जो हमें देता है। यिर्मयाह की किताब, उसका 5वां बाब मेरे साथ निकालिए। यिर्मयाह 788 सफा पर यह आयत है। बात को जरा गौर से सुनिएगा, फिर आपको समझ लगेगी। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हुआ, शायद आपको इस तमसील की बात जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको पता ही ना चले। यिर्मयाह 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत, ये जरा मछलियों के बारे में भी मैं बता रहा हूं। 5वां बाब और 14वीं आयत कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो, खुदाम रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में, किसकी मानद है, आग, और इन लोगों को लकड़ियां बनाऊंगा और वो उनको बसम करेंगे। यानी कलाम क्या है, मछली क्या है, हाँ जी, मछली भी आग है। समझ लें क्या है, मछली आग ही होती है। मछलियों में क्या होता है, आग होती है, और आग की क्या होती है, रोशनी होती है। यहाँ पर एक तो ज़बूर नवीस ने क्लियर कर दिया कि हमारे कदमों के लिए चिराग क्या है, कलाम। यहाँ पर भी यिर्मयाह के सहीफे में भी क्या हमने पढ़ा है कि कलाम क्या है, आग है। यानी कि वो मछलों में जो रोशनी है वो सबके पास है। यीशु मसीह की रोशनी क्या है। एक और हवाला हम पढ़ेंगे इसी किताब का 23वें बाब की 29वीं आयत पढ़ेंगे। 23वां बाब मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह में। मैं जरा आपको कुछ चीजें आपके साथ, ये नबूती कलाम है, फिर से मैं कह रहा हूं तमसीली कलाम है, तो मैं तमसीलों की जो मायने है वो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं आग और मशल के बारे में। 23वां बाब 29वीं आयत क्या है, क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं है, खुदावंद क्या है, फरमाता है, और थोड़े की मानद जो चट्टान को चकनाचूर कर डाले। यहाँ पर कलाम को 2 चीजों से तशबीह दी गई है। किस किस से, आग और हथौड़े के। और ज़बूर का हमने पढ़ लिया और वो ये तो हमें याद है। यानी कि 10 जो कलीसियाओं के लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर हम कलाम मुकद्दस की बातें सुन रहे हैं यीशु मसीह के बारे में।
सुन रहे हैं कि सुन रहे हैं? कुछ लोग कैथोलिक से भी जा रहे हैं, प्रेस्बिटेरियन भी जा रहे हैं, साढ़े छोटे जो माड़े चर्च भी जा रहे हैं। इसी तरह और चर्चेस में जाकर भी क्या है, कलाम सुन रहे हैं, यस्सु का कलाम सुन रहे हैं, यस्सु के बारे में जानते हैं, लेकिन जो सच्चाइयां हैं वो पूरे तौर पर नहीं समझ रहे। कई चर्च सच्चाइयों को बता ही नहीं रहे। अब ये जो 10 कुंवारियां हैं, इसका मतलब है यस्सु को मानने वाले हैं सारे, लेकिन उनकी मछलें जो है पूरी तरह पर रोशन नहीं है, उनके अंदर कलाम नहीं है पूरे तौर पर, उनकी मछलें। पहली बात तो समझ लीजिए 10 कुंवारियां कौन है, फिर से मैं बता रहा हूं क्या है, क्या है, कलीसिया है। कलीसिया से मुराद क्या है, कलीसिया के लोग, कलीसिया के क्या है, लोग। दूल्हा आने वाला है, सबको पता है, सारे चर्च यही कलाम दे रहे हैं, दूल्हा क्या है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बता रहे। ये उनकी मछलें जो 5 हैं, 5 अक्लमंद है और 5 क्या है, बेवकूफ। यही कलाम मुकद्दस में पढ़ा है। अक्लमंद वो हैं जो सच्चाई का कलाम सुन रही हैं, जो सच्चाई की बातें सुन रही हैं, जो मिक्स कलाम नहीं सुन रही कि इसके पास जाकर भी आप दुआ कर सकते हैं, इसको पढ़कर भी आप दुआ कर सकते हैं। ये मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि यीशु मसीह कि वो बपतिस्मे की तालीम कई तो कलीसियां दे ही नहीं रही। बपतिस्मे की तालीम यीशु मसीह की नहीं दे। मैं फिर से कह रहा हूं, पता है यीशु मसीह का सबको, इन 10 कुंवारियों को भी क्या है, यीशु मसीह का क्या है पता है, लेकिन सही तालीम नहीं पा रहे। मछलें जो हैं सिर्फ 5 की क्या है, दुरुस्त है, और 5 क्या है, बेवकूफ है। पता भी चल रहा है कहीं से सच्चा कलाम मिल रहा है, तो भी वो वहीं पर क्या है, टिके हुए हैं। क्या है, टिके हुए हैं। 10 बेवकूफ और 10 क्या है, अक्लमंद। आगे वो इंतजार में है और दूल्हे ने थोड़ी सी देर लगा दिया, लिखा है। हाँ जी, और सॉरी 5 बेवकूफ, माजरत के साथ 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद। अब दूल्हे ने थोड़ी सी देर लगा दिया, सभी इंतजार में है, सभी क्या है। और रात के वक्त खबर आ गई, दूल्हा क्या है, आ गया। अब आ गया और कुछ के पास तेल है अपनी मछलों को क्या है, और कुछ के पास तैयारी की जाने के लिए सब। अभी तेल का भी मैं आपको बताऊंगा। ये तमसीली, मैंने कहा ये तमसील में तमसीली बातें हैं, तमसील आपके साथ शेयर करूंगा इन बातों को सिखाने के लिए। तेल क्या है मुझे पहले बताएं, बताएं जो जो आपको पता। पीछे आया खुदा का कलाम है, कुछ कह रहे ईमान है, कुछ क्या कह रहे हैं, बारी बारी दसो, बारी बारी। अच्छा, कुछ ईमान कह रहे हैं, हाँ जी। कलाम, मछलें, रोशनी, फिर थले अगर कलाम ही आ गया तो फिर तेल ते कलाम और मछली फर्क हो जाएगी। समझे जरा बात को। रूल कुदस है। अच्छा, भाई ने बताया रूल कुदस, और बताएं। अच्छा, रूल कुदस के बारे में अगर मैं ये कहूँ, हाँ, कई खादमों ने रूल कुदस का कहा हुआ है। मैंने पहले कहा है कि ये बात जो मैंने सीखी है और जो मुझे पता चली है, ये बड़ी डिफरेंट होगी। रूल कुदस के बारे में आगे वो लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बेचने वालों के पास जाओ, रूल कुदस मुझे बताए अगर पैसों से मिले तो फिर रूल कुदस ना होगा। हाँ जी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि एक शख्स ने जब रसूलों को देखा, वो भी ईमान लाया था, जादूगर था, तो उन्होंने देखा कि वो रूह कुदस आया तो लोग उससे शिफा पा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि रसूला के कोल गया, कहता मेरे को पैसे ले लो यार, ये चीज ਤੁਹਾਡੇ को भी की है। तो रसूलों ने क्या जवाब दिया था, तू और तेरा पैसा गरक तेरे साथ ही क्या हो जाए, तूने खुदा की बख्शिश को पैसों से खरीदने की क्या है कोशिश की है। तो रूह कुदस अगर आपने पढ़ा, सुना, सीखा हुआ है, तो आज मैंने फिर से बताने लगा। बहुत सारे खादिम इसे रूह कुदस ही कहते हैं, क्योंकि तेल के साथ जब मसा किया जाता है तो रूह कुदस ही क्या आता है, ठहरता है, नाजिल होता है,
आप बादशाहों को देख लें, जब मसा किया गया तो क्या खुदा की रूह क्या है उन पर ठहर गई। अगर खादमों को मसा किया गया तेल के साथ तो क्या हुआ है? कुदस ठहरा। लेकिन ये नबूवती कलाम में मैं आज आपको कुछ डिफरेंटली बताने जा रहा हूँ। कलाम मुकद्दस में ये जो तेल है इसके बारे में पहले हम देखेंगे। चिरागों को जब जलाया जाता था हैकल में तो खालस एक तेल कहा जाता था। कौन सा तेल था? जैतून का क्या है? तेल है। यानी कि वो मछलें खालस जैतून का तेल उन्हें चाहिए। क्या चाहिए? जैतून का क्या है? आइए इस बात को पहले हम सीखते हैं। खरूज की किताब मेरे साथ 27वां बाब निकालें। खरूज की किताब, ये तमसीली कलाम है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। 27वां बाब, और उन इन बातों को मैंने सीखा है और मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें और इस बात को जानें। 27वां बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। 27 एक्सोडस 27, 27वां बाब 27 20वीं आयत। ये खुदा जब मूसा को कह रहे हैं वो मछलें जो चिरागदान हैकल में होंगे वो किसके साथ जलाने हैं, और तू बनी इस्राएल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालस तेल रोशनी के लिए लाएं ताकि चिराग हमेशा क्या है? जैतून का खालिस तेल कूट कर क्या करना है? लाना है ताकि चिराग क्या हो? जलता रहे। हमेशा क्या है? हमेशा कलाम जलता रहे। और किसके साथ? जैतून। आप जरा प्लीज, आपने सीखा हुआ है इस बात को। मैंने जब तक कलाम की शहादतों के साथ ना बयान कर दूं, हाँ आपने ठीक कह दिया, लेकिन कलाम की शहादतों के साथ इस बात को जरा ना सीखना चाहिए। आगे 21वीं आयत भी साथ में, खैमा इज्तिमा में उस पर्दा के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक शमादान को खुदावन के रूबरू आरास्ता रखे, और ये दस्तूरुल माँ बनी इस्राएल के नस्ल दर नस्ल सदा जैतून का तेल है। और ये तेल भी जो मछलों को रखता है वो खालिस तेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसी बात को एक हवाले में और सीखेंगे हम। एहबार की किताब मेरे साथ निकालें। एहबार की किताब 24वां, क्योंकि जब तक कलाम की शहादतें ना हो, मैं समझता हूं कि हम कोई भी बात को मुतमिन तौर पर ना मुतमिन नहीं होते जब तक कलाम में कुछ ना हो। सारी आयत पढ़ने लगाओ 24वें बात। और खुदावंद ने मूसा से कहा, किसने कहा? बनी इस्राएल को हुक्म कर के वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल किसके लिए लाए? रोशनी के लिए लाएं ताकि चिराग क्या है? हारून उसे शहादत के पर्दा के बाहर खैमा इज्तिमा में शाम से सुबह तक खुदा के जुर्र करीना से रखा करे। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल यही आइन जैतून का खालिस तेल जो है, खुदा ने मूसा को जो आसमान पर अक्स दिखाया था उसका हुक्म दिया कि शरीयत में और जो चीजें मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ये ऐसी ही हो। ये क्या हो? ऐसी हो। और जैतून का खालिस तेल ही मछलों को जो है वो रोशन रखता था। अब मछली खुदा का कलाम है। मछली क्या है? खुदा का क्या है? कलाम है। कलाम मुकद्दस में यसुम मसीह ने इस तमसील को सुनाते हुए कहा कि जब वो 5 कुंवारियों के पास तेल नहीं था तो उसने कहा बेचने वालों के पास जाएं। किसके पास जाएं? बेचने वालों के पास। जैतून का तेल बेचने वालों के पास है। और बेचने वाले कौन है? बेचने वाले कौन है? खुदा के खादिम है। बेचने वाले क्या है? और खुदा के खादिम सच्चाई की जो बातें बताने वाले हैं उनके पास जाना है। सच्चाई का कलाम है ये जैतून। सच्चाई का क्या है? कलाम है। सच्चाई का कलाम जो खादमों के पास सच्चाई का कलाम है उनके पास ये मिलेगा। और बेचने से मुराद मैं बताता चलूं, हिकमत के बारे में लिखा, यानी कि कलाम मुकद्दस में इमसाल की किताब में लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। मेरे साथ जरा निकाले इमसाल 17वां बाब 16वीं आयत। ये बेचने के बारे में बताने लगा।
मैं पहले तमसीलों के मतलब आपको बता दूं, फिर सारी तमसील का मैं आपके साथ, जरा इस ज़हन में रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, जो जो बातें। इमसाल की किताब 17वां बाब, कोई बात नहीं, 17वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, हिकमत खरीदने को अहमक के हाथ में कीमत से क्या फायदा, हालांकि उसका दिल उसकी तरफ, कह रहे उसके पास, अहमक के पास पैसे भी हो तो वो हिकमत खरीद भी ले, जब तक क्या है उसका दिल ही उस तरफ क्या है खरीदने के लिए, यानी कि वो खुदा के खादमों के पास जाता भी है जिधर दिल ही नहीं उधर है तो हिकमत मिलने। यसुम सी ने अपने शागिर्दों को जब भेजा तो उसने कहा तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। समझे बात? खरीदने वाले कौन है, सॉरी बेचने वाले कौन है? यसुम सी ने क्या कहा, तुमने मुफ्त पाया है और मुफ्त देना। अब जो जैतून का तेल है उसको मैं आपके साथ तमसीली जो बात यहाँ पर लिखी है उसको शेयर करने लगा। जिक्रिया की किताब और उसका चौथा बाब जरा मेरे साथ निकाले। ये तमसीली बात है, कलाम ही में इसका जवाब मिलता है। तमसीलों की जो बातें हैं, जिक्रिया मेरे साथ निकाले चौथा बाब। कुछ चीजें आपको, ये मलाकी से पहले है, सेकंड लास्ट बुक है जो जिक्रिया है, मलाकी से पहले है, चैप्टर नंबर 4 है, 4। चैप्टर नंबर 4 पहली आयत से पढ़ने लगा। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा तू क्या देखता है? और मैंने कहा मैं एक सोने का क्षमादान देखता हूं जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नलियां हैं और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा जैतून के क्या है दरख्त है। जैतून क्या काम कर रहा है पुराने नामे में? मछलियों को क्या कर रहा है? मछलियों को क्या कर रहा है? जैतून का काम क्या है जरा समझे, क्या काम कर रहा है? मछलियों को क्या कर रहा है? रोशन कर रहा है। और अब जैतून के बारे में आगे कलाम मुकद्दस में ही खुलकर एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा। चौथे बाब की 11वीं से 14वीं आयत है, ये 14वीं आयत में मिल जाएगा, 11वीं से हम पढ़ते हैं। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो क्षमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों के मुत्सल हैं जिनकी राह से सुनहला तेल निकला जाता है? उसने मुझे जवाब दिया क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा नहीं है मेरे आका। उसने कहा ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमी के हजूर खड़े रहते हैं। समझे हैं बात को? जैतून कौन है? खुदा के खादम ही है, बेचने वाले भी खुदा के खादिम हैं, लेकिन जैतून जिनके पास है खुदा के वो सच्चाई का कलाम है। क्या है? जिनके पास सच्ची तालीम है, जिनके पास यस्सु मसीह की हकीकी तालीम है। और यस्सु मसीह की हकीकी तालीम मैंने पहले बताया 10 के 10 यस्सु पर ईमान लाते हैं। 10 के 10 क्या है? लेकिन 5 क्या है? और 5 क्या है? 10 के 10 चर्चेस में जा रहे हैं, कलीसियां बहुत सारे चर्चेस में जा रही हैं, बहुत सारे खुदा के खादमों के पास जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई की बातें हैं वो हर एक नहीं बता रहा। यीशु मसीह की सच्चाई की बातें, अब वो रोशन ख्याल है इस बात से कि यीशु मसीह आने वाला है। अब अगर हम इसको देखना चाहें तो मुकाशफा में भी जैतून की इस बात को क्या है वो मिल रहा है। और अब्रानियों के खत में लिखा हुआ है पुराना अहदनामा सारा जो है वो अक्स है खुदा की उस आसमान की क्या है चीजों का। इसको पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जरा अब्रानियों 10 बाब निकालें। अब्रानियों की किताब, ये कुछ आयात हैं, अगर आप लिखना चाहें मुझसे भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कुछ तमसीली आज जो बातें हो रही हैं उनको थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 10वां बाब पहली आयत
क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, क्या है? आइंदा चीजों की क्या है? शरीयत में आइंदा की चीजों का क्या है? अक्स है। कलाम मुकद्दस में इसी इब्रानियों के खत में भी और मूसा को भी जब खुदा कह रहा है कि मैंने जो तुझे ऊपर अक्स दिखाया है सारी चीजें, इनकी नीचे जाकर सारी तूने क्या करनी है? नकल करनी है और सारा कुछ ऐसे ही बनाना है जो मैंने तुझे आसमान पर दिखा दिया है। कलाम भी फरमाता है कि कुरान शरीयत जो है वो सारा अक्स है आने वाली आइंदा की सारी क्या है? चीजों का। और आइंदा की चीजें हमें कहां पर मिल रही हैं? कौन सी किताब में? मुकाशफा में। मैंने कहा कौन सी किताब में? 66 किताबों में से कौन सी किताब में हमें आइंदा की चीजें मिल रही हैं? मुकाशफा में। 24वां बाब मैंने बताया, मत्ती की इंजील भी छोटा मुकाशफा है जो यीशु मसीह ने आने वाली चीजों का क्या है? बताया है। और मुकाशफा में तो आने वाली चीजों का सारा ही सारा क्या है? जिक्र है। अगर आप अभी भी मुतमिनी में एक और हवाला आपको ज़ैतून के हवाले से दूंगा कि ये गवाह है। मुकाशफा की किताब 11वां बाब जरा मेरे साथ निकालें। आज जो कलाम है वो थोड़ा सा, जो कलाम पढ़ने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है समझ के साथ होगा। जो खुदा के साथ चल रहे हैं, कलाम तो सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तमसीली होती है, उनको बताना पड़ता है। कलाम मुकद्दस में मुकाशफा 11वां बाब मेरे साथ निकालें। 11वां बाब 3री आयत पढ़ने लगा। और मैं अपने 2 गवाहों को मैं अपने इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चराग दान हैं जो जमीन के खुदावन के सामने क्या है? ज़िक्रिया में हमने पढ़ा इस बात को कि ये जो 2 दरख्त खड़े हैं ये कौन है? वो कह रहा है कि ये मेरे 2 ममसू हैं। यानी कि जैतून से मुराद सच्चाई खालस और सच्चाई की तलीम खालस, खुदावंद यीशु मसीह की तलीम खालस तरीन, जिनके पास है वो अक्लमंद कुंवारियां हैं। सुन रहे, वो अक्लमंद क्या है? जिनके पास यीशु मसीह की सच्चाई की तलीम है। दुल्हा देर कर रहा है सुते हुए ने, कई कलीसिया कहते ने गोश्त भी खाई जाओ, ये सच्चाई की तलीम नहीं है। कई कलीसिया कहते ने शराब भी पीवी जाओ। कई कलीसिया अब ये कहेंगे शायद किया ही नहीं है कलीसिया ने शराब पी। कई ऐसे हैं। मैं किसी के पास बैठा हुआ था शायद, या किसी घर में था, तो उन्होंने कहा शराब तो यीशु मसीह ने आप ही बनाई। हाँ जी, उनको कलाम का पता भी है। ये 10 कुंवारियों को भी कलाम का क्या है? पता है। यीशु मसीह ने क्या है? आना है, लेकिन सच्चाई की बातों पर अमल नहीं हो रहा। अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहे, अपनी ही चीजें जो है वो तैयार की हुई हैं। खुदावंद खुदा मुझे और आपको इस तमसील में कुछ बता रहा है, सिखा रहा है। अगर आप उन 5 कुंवारियों की में शामिल होना चाहते हैं जो अक्लमंद है, तो खुद ही ढूंढे कि कहां से हमें सच्चाई का कलाम मिल रहा है, कहां से हमें सच्चाई की बातें मिल रही हैं, किस तरह हमारी मशलें जो है रोशन होगी, किस तरह। वो 5-10 के 10 जो है मशलों के साथ ममूर हैं। मशलें हैं उनके पास, हैं कि नहीं है? कलाम पहुंच रहा है उनके पास। कलाम क्या है? पहुंच रहा है। अब जरा आ जाइए उस तमसील पर। मैं अब जो चीजें तमसीली थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब मैं जरा 5-10 मिनट में इस बात को आपके साथ शेयर करके फिर इसको खत्म करूंगा। मेरे साथ अब आ जाए। मैंने जो तमसीली बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आए, अब मैं जब पढ़ने लगा हूं इस तमसील को, तो आपको जरूर सारी बातें क्लियर होंगी जो आपने सीखी हैं। और उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को क्या है? सारे के सारे चर्चेज यीशु मसीह की तालीम दे रहे हैं, सारे के सारे यीशु मसीह की आमद का बता रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की जो तालीम है, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, आमद का बता रहे हैं, जो उसके बीच की बातें हैं सच्चाई की, उनको पता ही नहीं है। जाना कैसे है? मिसाल के तौर पर इस जगह का पता है और पता है इस जगह क्या है, जाना है। इसके बीच का जो रास्ता है, कलाम की सच्चाइयां, कलाम की शहादतें सच्ची, वो नहीं बता रहे। मशल
पहुंचा दी, उनके हाथ में पकड़ा दी गई है, लेकिन मशाल को रोशन कैसे करना है, और वो रोशन कलाम मुकद्दस में आगे हम पढ़ेंगे इस बात को। जो उनमें 5 बेवकूफ थी और 5 क्या है, पता भी है लेकिन अपने मतलब की चीजें क्या कर रहे हैं, लई जा रहे, जेड़े साडे काम करी जाइए यार, शराब भी बेची जाइए, पाउडर भी बेची जाइए, जुआ भी खेली जाइए, ये सारे काम भी क्या है, करी जाएगी। पादरी दाई अखियां भी लई जाए, हदिये भी उन्हां को लई जाए, हर चीज लई जाए, ते उन्हां नूं कहे ना कि तुसीं यह काम की करो, ना करो। छੱਡ दो। ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੋ, ਛੱਡ दो। सच्चाई की यहाँ की बात भी बता दी, यहाँ तक पहुंचने की बात बता दी, बीच का रास्ता नहीं बता रहे। और यही आज जो कलाम मुकद्दस में है, ईमानदार हैं, यीशु पर ईमान रखने वाले हैं, कुछ बपतिस्मे की तालीम ही नहीं देते। यीशु पर ईमान है, बपतिस्मे की क्या है, और वो एक रास्ता जरिया है यीशु मसीह की बादशाहत में शामिल होने का। बुढ़े उस निकोदेमुस को खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसके पास तालीम और जिसके पास इल्म है, जिसने बहुत सारा इल्म सीखा है, सरदार काहिन है, सारा कुछ है, और जब वो यीशु के पास आया है तो यीशु ने कह दिया तुझे नए सिरे से क्या है, लगाना बहुत जरूरी है। कलाम मुकद्दस फरमाता है जो यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। क्या है, नया मखलूक। पुरानी चीजें क्या है, ते जे नया मखलूक ही नहीं हो, पुरानी चीज़ां नाल नाल ही है, ते फिर वो नवा मखलूक किवें हो गया। कोई नहीं बने, हाँ जी, नहीं बने। पुरानियां चीज़ां की है, नाल ने, तो वो नया मखलूक तो बना ही नहीं है। भाई वो चीजें तो बता दी कि यीशु मसीह राह है, वो भी बता दिया यीशु मसीह ने आना है, तो सुते होए ने ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਜਾएंगे, ਜੇ ਸਾਨੂੰ सच्ची तलीम का पता है, वो भी सुते थे, अकलमंद भी सुतियां सी, लेकिन उनके पास ऐसी चीज थी, सच्चाई का कलाम, वो जागी, तो उन्होंने अपनी वो सारी जो सच्चाई का कलाम था उसके मुताबिक अपने आप को रेडी कर लिया कि दूल्हे की आवाज पड़ गई है, चीज़ां जाहिर होनियां शुरू हो गई हैं। चीज़ां की है, दूल्हे की आवाज क्या है, ये चीजें जाहिर होना, जो दुनिया के हालात हैं, जो छोटे मुकाशफा यानी कि 24वें बाब में मत्ती में यीशु मसीह ने फरमाया ये चीजें क्या है होंगी, और तुम अपने आप को उस वक्त क्या करना, तैयार कर लेना। लेकिन आज भी लोग जो है तैयार ही नहीं हो रहे। चीजें तो हो रही हैं, यीशु मसीह की आमद की तैयारी शुरू है, आ रही हैं, दुनिया का सारा माहौल देखने हैं, ये यीशु मसीह के आने की तैयारी है, लेकिन हम जो है वो काम ही नहीं छोड़ रहे। पता है यीशु मसीह का, यीशु मसीह ने आना है और हमने शामिल होना है, और बीच का रास्ता जो है वो नहीं, सच्चाई की बातें नहीं बता रहे, सच्चाई का कलाम। आए जरा, जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली, मगर तेल साथ, मछलियां हैं उनके पास, तेल नहीं है, सच्चा कलाम नहीं है, कलाम से अमल उमल कोई नहीं है। चलाई जाओ दुनिया के नाल अपने आप, दुनिया ने भी तबाह थे, आप भी तबाह होना है। बेशक यीशु मसीह ने सी वैसे कहा, वो मैनू कहन दे कि ਅਸੀਂ तेरे नां नाल की कीता वे, मौजज़े कीते, बदरूआं नू कढ़िया वे, बीमारां नू शिफा दी। यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानू जानदा ही नहीं, मैं नहीं जानता। आगे लिखा है, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। आधी रात को दोपहर धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकले। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी मशल दुरुस्त, सारियां कुंवारियां अपनी मशला किए, सारे कलीसिया जिथे जिथे इबादत हो रही है, सारे लोग अपने आप को की करन दे, दुरुस्त करन दे, यीशु मसीह की है। लेकिन दुरुस्त अगर ना कर सके तो दरवाजा बंद हो जाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ लो। अच्छा, इन्हें थोड़ा समझाना तो मैं दसन लगा, कोई जगह ते जाना होए ना, चर्च वाले ने दसना मिसाल है कि इत्थे असीं इबादत ते जाना, ते किसी ने बाइबल फड़ ली, किसी ने कापी फड़ ली, किसी ने अपने कपड़े च, ये तो मैनूं दस्सिया नहीं, इंज भी होना सी, मैं भी इंज तैयार हो जाना। किसी ब्याह ते जाना है रिश्तेदारां, ये कित्थे जाना सी मैनूं दस्सिया नहीं, इंज भी होना उत्थे, ते फिर भी उत्थे खाना चिकन भी है। अच्छा,
मैं तो पहले ही रोटी खा चिकन ली पकोड़ा भी है, मैं तो पहले ही रोटी खा ली एक की होना है भी होना में। अच्छा जब वो अक्लमंद तैयार हो रही हैं तो वो की कह रही हैं इस तरह भी है, हाँ जी इस तरह भी होना में, इस तरह भी होना है। अच्छा असि भी सीखा ही नहीं है, सानू तो पता ही नहीं है इस तरह भी है। अक्लमंद क्या हो रही है, दोनों 10 की 10 क्या हो रही हैं, तो क्या हो रहा है वहां पर, वो एक दूसरे से बात कर रही हैं, तू इंज हो रही है तो मेनू तो ये पता ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा चेंज करो, जाओ बेचने वालों के पास जाओ। किसके पास? यानी कि जिन खादमों के पास कलाम है सच्चाई का, वहां पर जाओ, वो तुम्हें ये बातें क्या करेंगे, बता देंगे जो मेरे पास है मैंने अपने आप के लिए क्या किया है, ये रखा है। तुम अब उनके पास जाओ, खादमों के पास जाओ। और जब वो वहां पर चले गई लेने, तो दूल्हा आ गया है और जो तैयार है उनको क्या किया है, उन्होंने भी हासिल कर लिया, लेकिन बाद चों तो जो दरवाजा बंद हो गया फिर की कर रहे। जब वक्त था तब उन्होंने उस बात को सीखा ही नहीं, तब उस बात को अपने अंदर कबूल ही नहीं किया। जब खादमीन बता रहे हैं तब उनको अपनाया ही नहीं। वो खैर सारे ही करी जान दे, असी भी करी जाने ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़ लिए, बाद जो पेपर के फेल। खादमीन सारी चीजें आपको बता रहे हैं, सच्चाई का जो खादिम है, जो खुदा की तरफ से जो गवाह है, खुदा का सच्चा गवाह है, खुदा के साथ चलना, सच्चाई की कलाम मुकद्दस में बातें बता रहा है, सारी चीजें कलाम मुकद्दस में से बता रहा है। वो आपको तैयार कर रहा है। आपने देखना है कि मैं जाना किससे, फैसला आपने करना है। मैंने जो आखिरी आयत आपसे पढ़वाई है वो एक दफा हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं इस बात को मैंने बता दिया। अब आखिरी आयत पर, पस जागते क्या है, क्योंकि तुम ना उस वक्त को जानते हो। सानू सुते हैं असी नहीं सानू पता, असी दुनियादारी दे नाल ही चली जा रहे हैं, असी सुते हुए हैं, असी सारे गए हैं। तो खुदावंद कह रहे जागो, देखो होश ना किथे तुहानू सच्चाई दा कलाम मिलन दिया जे, किथे तुहानू सच्ची गल्लां मिलन दियां, किथे खुदा दा बंदा तुहानू सारियां चीजां दसन दिया है। आज मुझे और आपको खुदावंद इस बात को सिखा रहा है, हम बेवकूफ कुवारियां ना बच जाए कि उत्थे जाके भी मत्था टेक लिया ते उत्थे जाके भी किए मत्था टेक लिया, ओरे नाल भी चल पे ते ओरे नाल भी किए दसदे ते यसू दा ही पे ने। उथों दसिया उथों निकल दसिया, विच घर वालियां सच्चियां गल्लां तुहानू नहीं दसन दिया। तो अगर आपको वो बातें हासिल करनी है, तो जहां आपको सच्चे गवाह खुदा के बैठे हुए हैं, जैतून का खालिस तेल आप तक पहुंचा रहे हैं, कलाम की रोशनी हो रही है। और जैसे जैसे चिरागों में तेल डालते हैं, रोशनी क्या होती है, तेज होती है। असी हले भी बुझे हुए हैं, साड़ी रोशनी तेज नहीं होती, सानू हले तक इबादत करने का नहीं पता है, इबादत च आने का नहीं पता है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि कैसे जिंदगी बसर, इसका मतलब है आपकी मशलों में तेल डाला जा रहा है। सच्चाई का कलाम क्या किया, आपको डाला जा रहा है ताकि आप रोशन हो जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, फिर क्या कहा, तुम दुनिया के नूर। अपने कामों से क्या करो, दुनिया में साबित करो कि तुम उस बात की क्या करते हो, इबादत करते हो, उसके उस बात को मानने वाले। ते साडे काम की है, महल्ले च कोई रिश्ता नहीं होन दिया कुड़ियां दा, मुंडियां दा नहीं होन दिया, कुड़ियां दी तो बड़ी दूर की गल है। काम ही साबित करते हैं ना सारा कुछ। कलामे मुकद्दस इस बात को है, चिराग आपका जलाने के लिए आपको तेल मिल रहा है, रोशन करें अपने आप को। मैं कल के परसों, हाँ जी कल एक जगह पर बैठा हुआ था, तो कह रहे हैं कि हम एक कलीसिया में गए, वहां पर जो है कलीसिया जो है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बताया कि कलीसिया कैथोलिक कलीसिया से उन पादरी जड़े कहते सारे प्रस्तिश करो, सारे तालियां बजाओ, तो वो इंज करके बैठे हुए, क्योंकि उनको कहा ही नहीं जा रहा कि प्रस्तिश सिर्फ क्वायर ने ही नहीं करनी बल्कि सब ने करनी, क्योंकि सब खुदा की बात के लिए है। सब ही क्या है,
यहाँ पर भी बात का प्रस्तिश वाला भाई कहता है हाथ खोलें, आवाज खोलें, और हम अपनी आवाज, क्योंकि आप और मैं कहाँ पर आए हैं इबादत करने, किसकी? खुदा की। ते असी किहड़ा किसी वास्ते आए हैं? असी जो अपना खुदा दे हजूर देन आए हैं, तो खुदा से असी ताली बजानी, खुदा से अपनी आवाज खोलनी। तो अपनी आवाज, कलाम जब कह रहा है खुशी से गाओ, खुशी से उसकी क्या करो? हमें इबादत आज के अभी तरीकेकार का ही नहीं पता, तो ऐसे वो कह रहे हैं कि ऐसे असी कही जाइए तो खोल नहीं ना, शर्मान पता नहीं मैं ताली बजाऊंगा मेरे नाल दा कहेगा, मैं ताली बजान दे यार। वो इबादत तो खुदा की कर रहे हैं, आप खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। सच्ची तलीम से मुराद जहां आपको सच्चाई की बात मिल रही है, सच्चाई का कलाम मिल रहा है, वहां आप जरूर जाएं, वहां आप जरूर इबादत करें। और अगर आपको बीच वाली बातें बताई नहीं ना जा रही, सिर्फ ओ दसियां जा रही हैं, तो आप समझ लें कि आप बेवकूफ कुंवारी हैं। मैं भी उसमें शामिल हूं। और अगर अक्लमंद हैं तो जागे, अपने आप को जरा सुस्ती चो जरा एक्टिव करो, ठीक है? एक्टिव करन तो बाद अपना नूर दूजियां तक चमकाओ, अपने उठन बैठन चाल चलन वेखन तो बोलन नाल ये आपका नूर चमकेगा दूसरों तक, फिर आप अक्लमंद कुंवारी हैं, क्योंकि लोग भी जानेंगे कि यीशु के साथ ये क्या है, चलने वाले। आज जो बातें कलाम मुकद्दस में मुझे मिली, मैंने आप तक पहुंचाई। और अगर आप अक्लमंद हैं तो आप जरूर जागेंगे, और अगर आप बेवकूफ हैं तो फिर हले सुनते ही रहोगे। आए अपने आप को परखें, देखें कि हम किन कुंवारियों में शामिल हैं, कलीसिया किन कुंवारियों में शामिल है, अक्लमंद कुंवारियों में या बेवकूफ कुंवारियों में। हमारा दूल्हा जल्द आने वाला है और वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो कहता है, उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। अब वो चला गया, वो जगह तैयार हो चुकी है, अब उसने लेकर जाना है अपने लोगों को। और अगर उसकी दुल्हन बनना चाहते हैं तो अपने आप को जिगाएं, उन अक्लमंद कुंवारियों के साथ अपनी मशलें तेज करें, कलाम को सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखें और उस कलाम पर अमल करें, ताकि आपकी रोशनी तेज हो, बुझे ना। बुझ गई तो काम आपका खराब है, मेरा भी खराब है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।